Hello and a very warm welcome to all. Today's topic of discussion is monetary policy and fiscal policy. Now, the various contents in this video shall be about the monetary policy, the types of monetary policy, the tools we use in monetary policy, as well as the liquidity trap. We shall also be discussing about the fiscal policy, the objectives of fiscal policy, and the types of fiscal policy. And the third topic that we shall be discussing in this video is the difference between the monetary policy and the fiscal policy. Now, to begin with, what is monetary policy? Monetary policies are formed and managed by the central banks of a country, and such a policy is concerned with the management of money supply and interest rates in the economy. It is basically the demand side of the economy. The monetary policy, the main objectives of the monetary policy are: it helps in maintaining economic stability, it helps in achieving price stability, and it also helps in promoting sustainable economic development. And monetary policy is what? It is the one which is implemented by the central bank. In India, the Central Bank of India is the Reserve Bank of India. Now there are two types of monetary policy. One is the expansionary monetary policy, and other is the contractionary monetary policy. Sorry for that. Now, in the expansionary monetary policy, it is usually implemented during recession or slowdown. What is done in this? That the central government, the RBI, the Reserve Bank of India, they lower the rate of interest. So once they lower the rate of interest, it is unfavorable to save in the bank. So the normal public, it promotes more of the spending. अगर हम इसे लेमैन टर्म में बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो आरबीआई होती है वो बैंक में इंटरेस्ट रेट कम कर देती है. अगर इंटरेस्ट कम कर देगी तो ऑब्वियसली हम पैसे ज़्यादा सेव नहीं करेंगे, हम पैसे ज़्यादा स्पेंड करेंगे. जितने पैसे हम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा. And hence expansionary monetary policy is one which helps to increase the money supply. It was last time implemented in 2008 during the financial crisis. The other one is contractionary monetary policy. This is usually implemented during high inflation. इसमें क्या होता है, जो आपकी आरबीआई होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है. एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो क्या होता है, हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कि इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है तो हम सेव करें अपने पैसे बैंक में, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा. जितना पैसे हम सेव करेंगे उतनी हमारी स्पेंडिंग कम होगी. सो इट कर्व्स द स्पेंडिंग. और जितने पैसे हम कम स्पेंड करेंगे और सेव करेंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई उतना कम होगा. राइट. So it was implemented in 1980s by the Federal Reserve, raised the interest rate up to 20%. Now there are various tools of monetary policy. एक टूल है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. जो आरबीआई का क्या करती है वो आपका, क्योंकि उनको क्या करना है, बेसिकली मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे, वो जितने भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उसको बाइंग एंड सेलिंग वाले में डाल देंगे. सेकेंड है आपका बैंक रेट और डिस्काउंट रेट. जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारी आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंक से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है. तो वो लोग क्या करते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होता है, राइट, तो क्या होता है, आपका जो मनी सप्लाई जो आपका है, इन द इकोनॉमी, इट गोज़ अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन कैसा रेट बढ़ रहा है. अगर रेट आपका जो कमर्शियल बैंक है, वो आपका जो आरबीआई है, वो अगर रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, वो भी रेट बढ़ा देगी. राइट. जो रेट पे वो दे रही है, तो इससे आपका जो बैंक रेट बढ़े या डिस्काउंट रेट बढ़े, आपके मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज़ द कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, सब आरबीआई में अपने कुछ पैसे डिपॉजिट रखते हैं. अगर आरबीआई अपनी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है तो सेंट्रल बैंक में जो कमर्शियल बैंक है उसको ज़्यादा पैसे वहाँ रखने पड़ेंगे. ऐसा जो मनी सप्लाई जो जा रहा है इकोनॉमी में, वो कम हो जाएगा.
ऑन द अदर हैंड, अगर आरबीआई अपने पैसे जो क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो है उसको कम कर देती है कि उनके पास कम पैसे रखने हैं, तो आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। कंसिडरिंग इन द लेमैन टर्म, बेसिकली आपका होता क्या है कि आपका कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक्स में भी होता है कि हमें अपने कुछ, इफ लाइक सपोज वी डिपॉजिट 10,000 रुपीज़, सो आउट ऑफ द 10,000 रुपीज़ वी कैन नॉट विदड्रॉ 500 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़, जो भी आपका इकोनॉमी का जो भी है, जो उस कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व रेशियो है। और जितने ज़्यादा पैसे आप उसमें रखते हैं उतने ज़्यादा पैसे वो मनी वो आपका इकोनॉमी में सप्लाई होता है। Then there is one concept which is known as the liquidity trap. Liquidity trap is an extreme effect of monetary policy. ये जनरली होता है ड्यूरिंग डिप्रेशन। इस समय क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा लो हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो क्यों, क्या क्योंकि मॉनेटरी सप्लाई जो है, मनी का सप्लाई जो है इकोनॉमी में चलता रहे, लेकिन इतना ज़्यादा कम कर देता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कि लोगों को लगता है कि हम इनको इसमें हम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम दे टेंड टू होल्ड बैक मनी, कि हम अपने घर में रख लें और इसे इन्वेस्ट नहीं करें। एंड टू गेट आउट ऑफ दिस लिक्विडिटी ट्रैप, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस फिस्कल पॉलिसी। नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? Fiscal policy is related to the way a government is managing the aspects of spending and taxation. It is the government's way of stabilizing the economy and helping the growth of the economy. Governments can modify the fiscal policy by bringing in measures and changes in tax rates to control the fiscal deficit of the economy. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी? मॉनेटरी पॉलिसी आपका जो है, जो हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट एक्सेट्रा। फिस्कल पॉलिसी अदर गवर्नमेंट का बजट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, या गवर्नमेंट जो टैक्सेस बढ़ा रही है, घटा रही है, तो ऐसे जब पॉलिसीज़ करती हैं तो उससे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। नाउ द फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द बजटरी पॉलिसी। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल in the hands of whom? The hands of the government, especially for the developed and underdeveloped countries or underdeveloped economies. What are the various objectives of fiscal policy? First, it helps in efficient allocation of financial resources. जो financial resources available हैं गवर्नमेंट के पास, उसको वो कैसे बजट्स बनाएगी, कैसे वो उसको allocate करेगी। efficient resources को allocation होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। रिडक्शन ऑफ इनकम इक्वालिटी, कैसे इनकम इक्वालिटी रिडक्शन करेगी, तो जितने जो अमीर लोग होंगे, जिनके ज़्यादा इनकम होंगे उससे ज़्यादा टैक्स देगी, जिससे कम इनकम होंगे उनके कम टैक्स ले रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट अपना बजट्स बना रही है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहे हैं डायरेक्टली। Then it also encourages in the foreign exchange earnings. जैसे अगर वो आपका जो इम्पोर्ट टैक्स है, अगर इम्पोर्ट टैक्स कम कर देती है तो क्या होगा, ज़्यादा इम्पोर्ट होएगा या ज़्यादा एक्सपोर्ट होएगा। तो जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है, जो आपके जो गवर्नमेंट टैक्सेस का रूल बना रही है, उसके बेसिस पे दे ऑल्सो हेल्प इन इनकरेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। Now there are two types of fiscal policy as well. One is expansionary and other is contractionary. Expansionary is usually used during recession. इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस को कम कर देती है। जितना टैक्सेस कम करती है और गवर्नमेंट में जितनी जी स्पेंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट अपने बजट्स बनाते हैं, वो बढ़ा देती है। तो इससे क्या होगा, टैक्सेस कम कर रहे हैं, अगर हम टैक्स कम दे रहे हैं, अगर मेरी इनकम 1,000 रुपीज़ है, टैक्स हम सिर्फ 50 रुपीज़ दे रहे हैं, तो मेरे पास 950 रुपीज़ है स्पेंड करने के लिए। तो मनी सप्लाई अभी इकोनॉमी में मेरी तरफ से 950 जा रहा है। वही गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस अगर बढ़ा दे रही है, अगर 200 रुपीज़ कर दे रही है, मेरी इनकम अगर 1,000 रुपीज़ है, तो अभी इकोनॉमी में से हम अब वहाँ पे 800 रुपीज़ दे पा रहे हैं। तो क्या हो गया, जितना टैक्सेस बढ़ा मनी सप्लाई कम हुआ। तो ये एक्सपेंशन में वो क्या कर रहे हैं, जो अपने जो टैक्सेस को कम कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दे रहे हैं। क्यों? ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा रहे। कॉन्ट्रैक्शनरी ऑन द अदर हैंड इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग इन्फ्लेशन। वो क्या करते हैं, इसमें टैक्सेस बढ़ा देते हैं।
अब जो जितने टैक्सेस बढ़ाते हैं और वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम कर देते हैं, क्यों? ताकि जो इकोनॉमी में मनी हो वो थोड़ा कम हो जाए और आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए. Now there are various differences between monetary policy and fiscal policy. As is available in the slide, you can see that monetary policy is basically what? It is a financial tool which is used by whom? It is used by the central bank. क्या चीज़ के लिए? ताकि जो वो फ्लो ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सके. वेराज फिजिकल पॉलिसी इज़ व्हाट? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है. जितने टैक्स पॉलिसीज़ और रेवेन्यूज़ वगैरह और जितने भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के होते हैं, ताकि वो किस तरह से इकोनॉमी को बेनिफिट कर सके, वो चीज़ देखते हैं. Now, monetary policy is something which is controlled by whom? It is the central bank of an economy. In case of India, it is RBI, Reserve Bank of India. Fiscal policy is controlled by whom? It is by the Ministry of Finance of the economy, जो सारे बजट्स वगैरह बनाते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज रिफॉर्म्स वगैरह बनाते हैं. Monetary policy, it measures the interest rate. It is applicable which is for lending money in the economy. और इसमें क्या होता है फिजिकल पॉलिसी में? हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और टैक्सेस देखते हैं इकोनॉमी में. जो फोकस एरिया किसी मॉनेटरी पॉलिसी का होता है कि किस तरीके से हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकें. लेकिन फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि किस तरह से हमने अपने इकोनॉमी में ग्रोथ ला सके. इट इज़ मोर ऑफ ग्रोथ एंड दिस इज़ मोर ऑफ स्टेबिलिटी. Monetary policy, the exchange rates improves when there are higher interest rate. And on exchange rate में fiscal policy का कोई असर नहीं पड़ता है. Monetary policy वो basically inflation को टारगेट करती है, उसको ठीक करने की कोशिश करती है. Fiscal policy का ऐसा कुछ ये नहीं होता है, वो सिर्फ इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प करता है. So the monetary policy, it has an impact on borrowing of an economy. किस तरह से इकोनॉमी का चल रहा है, जो RBI काम कर रही है किस तरह से काम कर रही है. फिजिकल पॉलिसी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द बजट डेफिसिट, कि आपका जो बजट गवर्नमेंट का चल रहा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे टैक्सेस वगैरह प्लान करें, ये सब वो देखती है फिजिकल पॉलिसी. This is all for the monetary policy and fiscal policy. In this video, we summarized about what is monetary policy, what is fiscal policy, what are the different types and objectives of both the policies, as well as what is the difference between the monetary policy as well as the fiscal policy. That is all for this video, and I hope you liked and enjoyed listening. And if you do like my video, do like it, and if you like my video, do like it and subscribe to my channel. Thank you and have a very good day.